ओके। आंध्रा, जर्मनी, जोधपुर, शिलोंग, काशीपुर, नासिक, मुंबई, उड़ीसा, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, पूना। वंडरफुल, वंडरफुल। सूरत, अमरावती, दिल्ली एनसीआर। Great, great, great. Fantastic. So we have people joining from all over the country and even from outside also. So everyone is welcome here. Okay. So let's start. Just give me a few seconds. I'll just start sharing my screen and start the presentation. Just a few seconds more. Please give me a thumbs up if you can see the screen. Okay. Right. Or you can type yes if you can see the screen. Okay, great, great. So let's start. Once again, namaskar to everyone. I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Anil Chauhan and I'll be your organization. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. And in today's webinar, we'll present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems. आज के इस वेबिनार में आपको एक ऐसी थेरेपी के बारे में पता चलेगा जो आपके न्यूरो यानी कि नसों की प्रॉब्लम्स के लिए, मांसपेशियों और मसल्स और हड्डियों या बोन्स की प्रॉब्लम के लिए काम करती है और बहुत यूनिक है। आपने काफी थेरेपीज ऑलरेडी ट्राई की होंगी एंड यू मस्ट हैव found some relief but not permanent relief. So this is something which gives you a permanent relief and we'll see how in a short while. ये हम जानेंगे कि ये परमानेंट रिलीफ कैसे अष्टांग चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। एंड दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेथड so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. आप ये आप एक प्रिवेंशन के तौर पर भी इस थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। I'd like to introduce you all to Swami Rajvibhu. He's a rare Kumbhak yogi. And Swami Rajvibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief, even after years of using allopathic medicine. And he's not only cured people in India, but in Europe, USA as well. And he's taking people out of chronic ailments like thyroid issues, BP issues, diabetes, and even life-threatening disease like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa. See, this Chikitsa or this therapy, it's a part of our Indian culture only. But it's all, forgotten and buried. So Swamiji is reviving this therapy once again. And when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. So how the structure of the human body can function in its best possible way, that's the purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a very profound way of addressing the aspects of a human body. Now, who is this webinar for? This webinar is for people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. Because there's no medicine that is used in this therapy. So this is for somebody who's looking for a permanent solution. And this is for people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Because it's not an overnight thing, it's not magic. तो इसीलिए आपको अपने ऊपर, आपकी शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर जो निर्भरता है, वो होते हुए भी हम प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं. सो वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ इन योर ओन हैंड्स.
Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtanga Chikitsa, freedom from pain and medicine. That's our motto. Swamiji will talk about the 8 Sharir. Soon after this, we'll play a recorded video of Swamiji. And then after that, we'll share the program details. And then Swamiji will come live to answer all your questions. So what does Swamiji talk about in this video? He talks about the 8 Sharir, or softwares you can call them. Srishti Sharir, Garbha Sharir, Dosh Sharir. You may be hearing these words for the first time. But don't worry, Swamiji will elaborate on these points. What actually are these Sharir or softwares? Marma Sharir, then Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti, and Vikriti Sharir. Prakriti and Vikriti are basically regeneration aspect of the body, and Vikriti is the degeneration aspect of the body. आजकल आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो degenerative है, which means organs are becoming weak. और आप स्वामी जी के द्वारा जानेंगे कि कैसे ये degeneration उतना ही है जितना चल रहा होता है शरीर में, और जो रीजनरेशन है शरीर में नए कोशिकाओं का बनना वो कम हो गया. क्यों हो गया है वो स्वामी जी बताएंगे. Then there are a lot of ailments that this chikitsa covers. It can address issues like knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg. These are some of the common ones. Drop foot, spine related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder or drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, nerve issue. These are some of the common ones. This program, or the Ashtanga Chikitsa therapy, it addresses more than 35 issues related to the nerves, muscles, and bones, even liver and metabolism. It covers, it's a vast spectrum of disease that it covers. Now, let's hear from Swami Rajvibhu about the 8 Sharir. He'll talk about, and he'll give you a very different perspective about the body, the disease, and the way we look at the human body, what we've been told. So without wasting any time, I'll just play Swamiji's video. Just hold on for a second. In the meantime, you can type the ailment that you're suffering from, and if you wish to leave your number also, you can leave your number so that later on after the webinar, we can get in touch with you to discuss your issue or individually also. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और अ स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके,
And the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. द डॉक्टर विल स्टिल से देयर इज अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम एट द नी. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is अष्टांग चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No.
So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय problem हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more.
So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark.
बिकॉज देर इज एन अनइवन एक्सपेंशन। असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे। सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 बेसिक डिसअलाइनमेंट है। नाभि, योर नेवल कैन गेट डिसअलाइन, वी कॉल इट धरण। योर चेस्ट कैन गेट डिसअलाइन, आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कौड़ी। एंड योर लेग्स कैन गेट डिसअलाइन, आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज नले इन द लोकल टर्मिनोलॉजी। नाभि, कौड़ी, नले। नाउ if your navi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है। Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा। अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें, just pull on the left side, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें। When you pull, what do you do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath, yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is कुंभक, it is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now, let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम, pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार, density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है.
So there are different kinds of tissues. This is called as sapta dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. There is no medicine. There cannot be a medicine. दवाई हो ही नहीं सकती है. So you will have to work internally. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. You can do exercise, you can do weight training, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज cannot rejuvenate your organ. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. So how will it happen? ये होगा कैसे? Should we do a little experiment? एक एक्सपेरिमेंट करें. Now keep your left palm like this. अपने बाईं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के, by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं. एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. You are making an external effort. By holding your breath, you are making an external effort. So when you lift something, कोई भार आप उठाते हैं. So how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे हैं. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong.
So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement होगा, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया.
Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs.
suddenly उसका मैराथन सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. You have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly.
within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आप मूव करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice, but you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine,
Where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? दैट इज व्हाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है, ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you everyone for listening so patiently to Swamiji. And now we'll invite one of the participants in the Ashtanga Chikitsa program to share his experience, how they found the program and how much they have benefited. And soon after that, Swamiji will be joining us live to answer the question, and we'll also share the program details also, which a lot of you must be waiting for. So I'll just invite Manhar sir. Sir, are you able to hear me? I'm unmuting you, so you can unmute yourself also. Hello. Yes, sir, we can hear you. Yes. Namaskar. Good evening, Welcome. friends. I am Manar Paradia from Mumbai. I am 79 years old. And when I was 14, the first time the back pain started to me. And since that, I am suffering at a certain interval. Now it is 24 hours so far. In 2019, doctor operated my spine. Almost half of the spine was cut and surgery was done. But that pain still remained. Then 84 also, I started cervical pain, then leg pain, and this all comes due to our lifestyle, hard work, not taking care of your body and everything. When I saw on Facebook about this Avisa Chikitsa, I was so much impressed and I have joined these classes. And I'm happy to tell you, it did, and slowly my body has started now responding. The intensity of pain is now started decreasing. My body has also started becoming more flexible than about it was stiff. Overall, I'm very happy with this 2.5 months course, and I also strongly recommend everybody to join this course. Not only it teaches, but it has got a very compact course of pranayam, yoga, and physical exercise, including a very, it is called Ashtanga Chikitsa, but it will, give you a lot of enjoyment, lot of happiness in the life. Slowly and slowly, your body will start responding it, and I am very sure within another 2 to 3 months, I will be I'll be moving very nicely. And now also, after the joining this, I have started even traveling also, living Mumbai. Thank you, gentlemen and ladies. Over. Thank you, sir. Thank you for sparing your time and coming here and sharing your experience. Thank you very much. Now we have Janaz ma'am. Please unmute yourself, and I'm putting you on spotlight. Welcome, Janaz ma'am. You can share your Good experience evening, also. sir. Good evening. Yeah.
And namaste to Swamiji and all the whole team. I'm really grateful and thankful that I have been able to connect with this therapy, because since 40 years, I'm a spiritual healer and I have done many modalities, whereby I was trying to help many people who came into my life with the request that they needed help beyond allopathy. Without medicines only, I've been healing. Okay, so I have been constantly in search of more therapies like that, and I came in contact with this in the WhatsApp group. I saw this about the therapy. I joined. I definitely feel that, you know, it is a real boon to the humanity that we can have this beautiful therapy healing our body, because I believe that the body is made up not for the chemicals or anything, and it can heal itself. I knew all these things, and I always counseled people on this thing, and only started with the therapies. Without medicines only I used to heal. Okay, and I have found a real miraculous therapy now, I feel, because once even I practiced on my own. And I would like to say actually how I came to be beyond this thing. When I met with an accident in 92, my hand was actually broken. It was a compound fracture. Even here, you can still see the difference in my arm. No, this whole thing, palm was severed, as well as my back, scapula, everything had been fractured. And I had to undergo 4 operations. And after that, what happened was I felt that my body was unable to take these medicines. Actually, I was too sensitive. And since I had to go in for surgery, I was forced to take in that. And after that, I started developing on the thyroid problems, issues, and my health issues, digestion, and all that gastritis problems. Everything was, it made me a mess, I should say. Okay. So even now I would tell, if I take a paracetamol, my heart rate will completely go down, and I will fall down on the ground unconscious. So when the doctor said this, I'm allergic to paracetamol, I'm not supposed to take. So by taking one paracetamol, if I can go unconscious, then what happens? If I take 2 or 3, I'll be dead. That is for sure. Okay, so I'm very, very serious against these allopathic medicines. I don't go in for it. Even when I'm sick, I always make a kada or what they say. I'm from Kerala, basically. So I make a kashayam and all those things only I take. I never go in for allopathic medicines at all, actually. And still, though I'm 63, I'm telling you, your health can be maintained by these wonderful therapies that we have from our ancient culture that has to come up. And I feel that this is a real, you know, miraculous way of understanding your own self, as well as not only for the physical body, but for the mental, emotional, spiritual levels, and all those areas where, you know, you need to concentrate well on. Okay, it is a package like which is going to increase your abilities, your possibilities of living a healthy life. Not only in the healthy life means that knowingly you come into that awareness and you grow really beyond your comparison or even what you can imagine. You become that infinite person. That is the thing, that unlimited happiness that can be felt, you know, when you're living also, that can be definitely assured with these therapies. Okay, so I would request everybody to join. And since my joining, I'm feeling totally, you know, light. My body is so light. I'm feeling so fresh and energetic as and when. Even after the whole day's work, you know, you don't get exhausted. Okay, and now I think my skin and all is becoming much more, you know, soft and supple and hydrated, which was not there before. And from internally also, I can think, I know, because there was a swelling and all in my throat and all, because due to that thyroid issues, they were actually they were scanned and said that I had nodules in the thyroid. It's actually it was supposed to become some like, you know, leading to cancer, I can say. Okay, but I took Arisht of this
Avisa healing also. I got Arishta and all. Now the swelling and all is gone, and I can see my throat clearly. And I'm sure that my internal things and all are quite fine. I don't even go for testing now. I don't have sugar or any BP or anything like that now. I'm totally healthy because of these things. So I had maintained with other modules of spiritual healing and all. And now I'm adding all these things also. I mean that Kumbha therapy also. And I would like to definitely share this way of, therapies and the way of healing to the world at large, for in the way that actually our Indian culture had so much of, so much of precious therapy that has to come out to the outer world, actually. So I'm really, really happy to Swamiji, and I'm really inspired by the way Swamiji gives that definitions and the meanings and all those things. I would love to definitely hear him more and more, and get into this healing therapy and start up a firm. Actually, I had some project in my mind for starting up such a session and all. And I think I have come into that level of time where I can definitely take up this thing forever. Okay, thank you so much for giving me a chance to be in this thing. Thank you so much, Janaz ma'am, for sparing your time and coming here to share your experience. Now, let's get to know the program details, which a lot of you must be waiting for. जल्दी से हम जान लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है, क्लासेस कब हैं, टाइमिंग्स क्या है. काफी लोग इंतजार कर रहे हैं इसी चीज का. So without wasting much time, all right, are you able to see the screen? If you are able to see the screen, please type yes or give a thumbs up. Yes. Okay, great. Now, first of all, this is a guided program which is conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक guided program है जो कुंभक mentors हैं, स्वामी जी द्वारा trained हैं, वो ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन. Zoom ऐप के ऊपर ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है. That is the first thing. Program modules. There are 3 modules in the program: module 1, 2, and 3, or you can call them Vata, Pitta, and Kapha module. Each module is of 21 days of duration. 3 हफ्ते का एक ड्यूरेशन, एक मॉड्यूल का ड्यूरेशन है, यानी कि टोटल प्रोग्राम का ड्यूरेशन बन जाता है 9 वीक्स. 9 हफ्ते का टोटल ड्यूरेशन है, which is 63 days. Then you see here, I've written 9 plus 1, 10. Why 1 week extra? We'll get to know in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning class or the main class, and 1 will be the mentoring or the practice class. And this will go on for 9 weeks. So total 18 classes. What are the next steps? You pay the program fee, and we have a special webinar pricing for people who have stayed back. And then you fill the participant onboarding form so that we can create login credentials for course access. What is this course access? You'll get to understand in a short while. And after that, you start your classes, starting with module 1, then 2, and then module 3. We'll talk about it in detail also. So again, module 1 consists of 6 classes, out of which 3 are learning or the main classes, and 3 are the mentoring or the practice classes. So same is for module 2 and 3. So total 18 learning classes plus 1 customization class. What is this customization class? We'll understand in a short while. So total engagement with you is for 10 weeks, 9 plus 1 week. Now batch 116 is starting on 6th February, which is a Monday at 6 p.m. Module 1, the mentor classes or the practice classes will be on Thursdays, since the main class is on Mondays. And for module 2, it will shift 1 day ahead, which means the mentor classes will be on Fridays, the main class will be on Tuesdays. For module 3, again, Wednesday is the main class and Saturday will be the practice class. What is the class experience like? These are live sessions, as you must have understood by now. And our mentors watch all the participants
so that they can guide you and give you the feedback. Many of people have a doubt if how we do this online. So don't worry about it. We'll talk more about it. How we take care and how we help people just online. You don't have to go anywhere, visit any place. Then you get written instructions also in English and Hindi as well. Then session recordings, all the classes are recorded and made available to you through the course dashboard. We'll talk about the course dashboard in a short while. There'll be like a lot of extra things that will be included in the program. There'll be mental practices. There'll be unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. This is a diet perspective, how to use food so that it does not harm your body. Okay, you'll get a video from Swamiji and the basics of food are given, because diet plans, they do not work. Every body is different. You can't fit it into a diet plan. So that's the reason they don't work. You need to understand the basics of food. Then simple detox processes are there and a lot of knowledge is shared with all the participants. Before I move ahead and share the program fee and everything, you can see I've written yearly expenses that you could be already doing just to maintain the disease or manage the disease that you're into. Why I'm sharing is this, because so that you can compare. As human beings, we like to compare things, be it a therapy, a piece of cloth or whatever. So when compared to the kind of money you're already putting in, spending on your disease to manage it. So what I've written here is doctor fee. These are yearly figures. You could be spending between 6,000 to 12,000 easily per year on just the doctor's fee. If you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000, you could already be paying to the physiotherapist. And medicines could be costing you another 15,000 to 30,000. If you total all of these, 33,000 to 72,000, you could already be spending, you may already be spending just to maintain the disease, because these are temporary things. I mean, there's no solution, permanent solution in most of the therapies. It's not there, and especially allopathy, we all know about it. And side effects of allopathic medicines, we won't talk about that much because everybody knows about them. So this could be the money that you could be already spending. And before I share the program details, it's also very important to know who this program is not for. This program is not for everyone. So when I talk about the points, who is it not for, so that it becomes clear who is it for. किन लोगों के लिए नहीं है? This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Since childhood, we've been used to taking a pill. आप जैसे देखते हैं, whenever a small child gets a little bit of cough or cold, parents, put a medicine, they give a medicine or a pill. So it's become a habit from childhood only. We don't allow the body to heal itself. We just pop a pill. And that's become a habit. So a lot of people I talk to, they say that कुछ दवाई दे दीजिए, हमें ये सब नहीं करना है. Because so it's for those who are looking for something magical medicine. It's not that kind of a program. And don't expect the results just in a day or two. Okay, these things take some time. And this is not for those who are not ready to work on their body, because every day you'll be needing about 80 to 90 minutes to practice all these kriyas. If you are moving towards a permanent solution, or if you wish to move to a permanent solution, you need to invest time, because the things that are long lasting take time. Short-term gains, you're already, allopathy is there for all of us. If you want short-term gains, that's for you, but this is not that kind of a program. And this is not for those who are impatient. We understand that when you're into pain and you're suffering from a disease, impatience do come in. Patience come ho jata hai, but we understand this, but still you'll have to be patient. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I want to emphasize this point because all of you must have seen an advertisement on Facebook where we mentioned free introductory webinar. Lot of people confuse it with that the therapy is free, but the webinar is free because it's an introduction to Ashtanga Chikitsa, because not many people know about Kumbhak therapy or Ashtanga Chikitsa. So the 9 weeks program is not free. This webinar is free. So please don't misunderstand.
Because many people have asked in the future that, oh, you advertise that it's free, but now you are charging a fee. So just wanted to make it clear so that you don't ask it again in the WhatsApp group and here also. And if you're looking, and this is also not for those who are looking for some tips, because permanent healing or any kind of healing does not work on tips. If a problem could be solved, if a health issue could be solved through tips only, most of the people could have already, already done it, because there are thousands and thousands of videos on YouTube from thousands of experts. So tips say healing nahi hota hai. So just wanted to make this clear. If you are here to pick up some tips, this is not the program. You have to enroll in the program for the complete healing, because zero se start. It involves a diagnosis also, which we'll talk about in a short while. What all you get? This is very interesting and this is very powerful also. Pran Shakti diagnosis for root cause determination. Most of the therapies that you see do not, either they don't know or they don't find the root cause. बीमारी की जड़ क्या है ये पता नहीं लगा पाती हैं ज्यादातर जो थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स हैं. प्राण शक्ति डायग्नोसिस, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन ऑनलाइन डायग्नोसिस. दूसरा, दिस इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस. सो इंटरेस्टिंग है, राइट? So how is it done online? Many people ask, and you may be wondering, how is it done online? You'll get a form, an online form, in which you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. And you have to note those down. You have to record these in the form. Second thing that has to be done is, you'll be writing about your problems, health issues in detail. And third thing that you'll be doing is, you'll be uploading a selfie photograph. There, if you are wearing specs, you don't have to wear specs while taking that selfie. And in case of ladies, no makeup also. So when these three things reach Swamiji, he is able to determine the root cause. Iski jad kya hai? Why did this problem start? What force became weak, has become weak in your body, due to which you landed into your current situation? If you remember in the video, Swamiji talks about the 84 forces. Which force out of those 84 forces has become weak, that he's able to find through the Pran Shakti diagnosis. And this is the magic of this therapy, this diagnosis. Okay. Then weekly, there'll be one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 is the actual duration. Then we take up questions, your doubts, those are answered by our mentors inside the class. So that may extend up to 20 to 30 minutes. So that's why 60 to 90 minutes. Then practice class, again, 60 to 90 minutes. Every week you'll be getting this. Online course access for 6 months. What is this online course access? All the recording, all the class recordings are shared through this course dashboard. They are stored here. You'll be needing a login ID and password. So this will remain with you for 6 months. After the 9 weeks program is over, till 6 months, you'll be having the access. And that is enough time to learn all Kriyas by heart. Somebody asked me that why 6 months only? If you need it, if you're practicing daily, you don't need more than 2 months, because you learn all these Kriyas by heart, and then you'll get written instructions also, right? Which you can download and take a printout. Then videos of all Kriyas done in the class is also provided in the course dashboard. How is this different from the class recording? In the class recording, it's of the whole duration of the class, about 90 minutes. But these videos will be of each Kriya separately. Some Kriya may take 2 minutes, some may take 5, 10 minutes. So you don't have to watch the whole 90 minutes of recording to just see how one Kriya is done. You can just watch these short videos. Then written instructions in English and Hindi, I already told you. You can download, take a printout, and follow these written instructions to do your Kriyas on a daily basis. Then private WhatsApp group to ask doubts and questions. This will be your home for the next 10 weeks. Like 2 days of the week, you'll be live with us. The remaining 5 days, when you're practicing on your own, and if you have a doubt that time, this WhatsApp group or the class WhatsApp group is the place where you have to ask your doubts and questions. Our mentors are there in the group. They'll be answering you, guiding you step by step. So that is a very important part. Then individual participant progress tracking. We track everyone's progress on a daily basis and on a weekly basis also. So that we know and you know that
you're making progress, and if you're not, then we can find out why you're not making the progress, what is lacking. Okay. And then therapy customization for each participant in the 10th week. If you remember, the first point I talked about the Pran Shakti diagnosis. Based on this Pran Shakti diagnosis, the therapy or the kriyas of each participant will be customized and fine-tuned, which will be different for everyone. Okay. So in this on why 10th week, a lot of you may be having this question that if the diagnosis is done in the first week, why not do the customization and give the customized kriyas to everyone in the beginning only? See, the body needs to be prepared. During these 9 weeks, 3 main things happen. The first is that the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced. Second thing that happens is you are taught controlled exhalation. And this is the reason if you do Kapalbhati on a daily basis, you are advised not to do it for 6 months. Because in Kapalbhati, there is this forced exhalation, and what we are teaching here is controlled exhalation. So that is done. And once the body is ready, then in the 10th week, when you get customized kriyas, then it will make more sense to you and this will give you better results. So the body needs to be prepared. That's the reason the customization is done in the 10th week. And the 10th and the last point is extended support for 30 days, even after the program is over. Why this is given? Many a times, some people are not able to attend classes for a couple of days, maybe due to illness or some other reason. So you don't have to worry that you miss something or where to ask. You still get 30 days. And this is inclusive in the program only as a standard feature of the program. Okay. All these points are talked about. Now, the price of the fee of the program, which a lot of you must be wanting to hear, 14,500. But like I promised that there's a special webinar pricing for people who have stayed back. And because you took efforts to attend this more than 1 hour of webinar. So what is that price? Let's see. Just 6,500 for the complete program, for the complete points I talked about, the therapy customization, the diagnosis. Just the diagnosis in itself could be worth this amount of fee. Because root cause determine, root cause जड़ पता लगाना बहुत ही जरूरी है. Otherwise उसके अगर आप जड़ नहीं पता है, the reason नहीं पता है, you'll just be doing experiments, that's all. So just 6,500 for the complete program, 10 weeks program, and this is valid till 4th February, Saturday till 12:30 p.m. because it's a very discounted price. So we want have many seats in this. Now, how to enroll? You pay the program fee. We'll share the payment methods also, how you can pay. Then you post the payment receipt in the WhatsApp. After that, you fill the participant onboarding form, which Neha will be sending you on your personal chat. And then you join the class WhatsApp group, which I just talked about, where you get support and where you can ask questions regarding the kriyas and the whole program. And then you start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. It's a simple 5-step process. Payment methods we'll share in the chat as well as in WhatsApp group also. And the last slide of this presentation is this one. This is the super team which will be at your service. We don't call ourselves super. Our participants call us a super team. When you enroll in the program, you realize the kind of hand holding that is done, the kind of support that is given. So that's the reason. Rachna Shrimal Bothra, she is the program director. And then Shalini Bhagwat, she is the class manager. She assigns the batches, the timings and everything. Ashwani Kumar, he is the IT manager. Then mentors, we have a lot of mentors who will be assisting you. Pooja Chopra, Randana Swain, Sukesh Raj, R.D. Gupta, Soni Chhabria, Rona Naran, Nina Rai, Suruchi Goel, Arundhati ji. We have a lot of mentors. Why? Because we understand this is an online program. So a lot of people are not comfortable with online program since we are used to a face-to-face interaction since childhood. So we've taken enough mentors on board so they can guide you and support you so that you don't feel lost. In online program, the things are a bit different, but we've taken every possible, care to address any issue, anything that may go wrong. So just be assured
we've got a proper team in place. That's what I want to emphasize. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge, and she'll be the person whom you will be interacting with the most before starting your classes. Anil Chauhan, that's me. I'm the WhatsApp admin, and I'll be answering most of your questions after the webinar, because due to shortage of time, Swamiji may not be able to answer all the questions. So don't, if your question is not answered, is not taken, please do not worry at all. Because you can type your question in the group, in the WhatsApp group, and I'll answer each and every question. Then Himanshu Reddy, he's the technical person who takes care of all the video recordings, the uploading to the course dashboard, the written instructions, the application through which you can download and access all your videos, the recording of the classes. Then Anita, she's the personal support. She'll be calling each and every participant separately also. And you'll also get her number, so that if there's something which you need to talk individually, so that can be also done. So that is all from my side. And I'll just see if Swamiji has joined. Yes, Swamiji has joined, and I'm putting him in spotlight. I'm unmuting you, Swamiji. Namaskar, Swami. I'll just take up the questions from the chat. Just give me a few seconds. Okay. All right. Yeah, people are typing knee pain, hip joint, low back pain, ankylosing. Madhu Ragwani ji writes ankylosing. I think she means ankylosing spondylitis. Acha, so I'll generically answer all these questions. Ankylosing is all about, इसे क्या कहते हैं? What do we say this? Autoimmune disorder. तो मैं आपको थोड़ा सा, because please use your intelligence rather than your education to understand life. You'll understand it better. You are intelligent people, but your education makes you a little dumb. आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं. So let's understand how this pain, what is pain? दर्द क्या होते हैं? शरीर में दर्द क्या होते हैं? और कब कब दर्द होते हैं? When it happens. So usually you'll see कि when there is a bruise or you get hit, कहीं पे चोट लगती है, खरोंच आती है, वहां पे दर्द होता है. कहीं पे अंदर से कोई फोड़ा निकला, दर्द होता है. कभी कभी the protrusion is just on the particular nerve. कहीं पे नाक के ऊपर एक फोड़ा आ गया, या फिर शरीर के ऐसे हिस्से में जहां एक नस है तो बड़ा दर्द होता है. राइट. आपको अगर हाजमा हजम नहीं हो रही कोई चीज तो भी दर्द होगा. आपके शरीर में कोई चीज रुकेगी तो भी दर्द होगा. If something stops somewhere, you get into pain. Then because of some kind of disalignment you get pain. Alignment खराब हो जाएगा तो भी पेन हो जाएगा. आपका हाथ कोई जोर से झटका दे दे तो पेन हो जाए. Sometimes you sleep not properly. If you don't sleep properly, what happens? You get a catch. एक नस जो है वो या तो खिंच जाएगी या तो फंस जाएगी तो आपको दर्द होगा. Right. Pain can also happen because of degeneration. जरा इसको और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं. कोई चीज दोबारा से बन नहीं पा रही, और उसका इस्तेमाल खूब हो रहा है, then also you'll get into pain. तब भी आपको दर्द होगा. So pain indicates some problem among, मतलब out of all these whatever I described, जितना भी कुछ बोला उसमें से कोई ना कोई कारण है जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है पेन कि there is a reason for pain. You take care of the reason, the pain will go off. ऐसा ही होता है ना. आपका रीजन ठीक हो जाए, पेन ठीक हो जाएगा. So usually here people have some neuromusculoskeletal problem. ठीक है ना. हमने प्रोग्राम क्या किया? न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल. नसों में, मांसपेशियों में, हड्डी में, इन तीनों को फोकस करके चलते हैं जरा. ठीक है. तो यहां पे मैं आपको तीन चीजें बता.
पेन हैपन्स बिकॉज ऑफ 3 रीजन। 3 कारण से पेन होगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी सुना रहा हूं, आपके शरीर की स्टोरी सुना रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले ये हो क्यों रहा है। हाँ, सो योर बॉडी वर्क्स ऑन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। आपका शरीर कैसे काम करता है? कोई चीज भी डालेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसे ही काम करता है। तो आप भोजन डालेंगे, यू पुट फूड इनटू योर बॉडी, देन इंसुलिन हैज टू बी रिलीज, और द बॉडी हैज टू रिलीज इंसुलिन, T3 T4, ये सब हॉर्मोन्स जो है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म में उस भोजन को आपका शरीर बनाने में जो काम करते हैं, वो हॉर्मोन्स निकलने चाहिए, वो एंजाइम्स निकलने चाहिए। ऐसा ही होता है ना। तो व्हाट इज द स्टिमुलस? इसमें स्टिमुलस क्या है जो कि एंजाइम रिलीज करेगा? आपका भोजन। तो वट एवर ग्रोज नेचुरली, प्रकृति में जो पैदा होता है। सपोज आपने एक केमिकल डाल दिया अंदर, ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग भारतीय हैं, हाँ, इंडियंस है ना आप लोग, तो आप लोग बहुत समझदार हैं, मगर अपनी समझ को इस्तेमाल कीजिए। तो कोई केमिकल डाल दिया आपने, अब आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर अ केमिकल, यस और नो? कभी कभी आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया करो, केरोसिन डाल दिया करो, मिट्टी का तेल, या सरसों का तेल डाल दो, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो हमारे शरीर भी उसी तरीके से काम करता है, ये डिजाइन नहीं है किसी केमिकल के लिए, मगर आपने तो बचपन से इसमें केमिकल डाला, तब क्या हुआ? आपके एंजाइम्स, हार्मोन का रिलीज ना कंफ्यूज हो गया, रिस्क आ गया, रिस्क आ गया। अच्छा, एनवायरमेंट का भी ट्रिगर होता है, मगर हमने तो एनवायरमेंट खराब कर दिया ना। तो योर बॉडी इज इन रिस्क, यस और नो? आपको ठंड लगती है तो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है ना, कपकपी लेके आता है, गर्म करता है, गर्मी में पसीना लाता है, ठंडा करता है, एडजस्ट करता है ना, रिस्पॉन्ड करता है। तो आपने एनवायरमेंट खराब कर दिया, अब आपके बॉडी का रिस्पॉन्स तो खराब होगा। आपने फूड की जगह केमिकल डाला, या फूड क्या डाला? जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड क्रॉप इनऑर्गेनिक फूड, प्रोसेस फूड आपने डाल दिया। अब आपके शरीर को मालूम नहीं कैसे रिस्पॉन्ड कर। तो आपने केमिकल डाला, उसका बॉम्ब आपके लिवर में आके फूटेगा। लिवर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर में 6 लेवल के मेटाबॉलिज्म, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होने का पूरा प्रोसेस। तो आपका फूड आपके अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट होता है। क्या क्या टिश्यूज है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 अलग अलग क्वालिटी हैं टिश्यूज के। उसके लिए 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म चाहिए, वो पहले लेवल पे ही गड़बड़ हो रही है। तो लिवर में आपका केमिकल जाके फूट रहा है, केमिकल बॉम्ब लिवर को नुकसान करेगा ना। लिवर पे पहला स्टेप मेटाबॉलिज्म का होता है। तो आप खरोंच लगा लो, थोड़ा ऐसे खरोंच लगाओ, जलन होगी ना, इस जलन को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये शब्द ना अंग्रेजी के ग्रीको रोमन वर्ड आपको जबरदस्ती रटाए गए हैं, आप उसे अपनी भाषा में समझो, है ना। जलन होगी ना तो इन्फ्लेमेशन। आप थोड़ा घी लगा लें, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, है ना। वो जलन, ये वो ज्वलनशीलता कम हो जाए। आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा ना, केमिकल भी डालते हो, एसिड डाल दो, इन्फ्लेमेशन होगा। तो लिवर में आप केमिकल डाल रहे हो, इन्फ्लेमेशन होगा, तो लिवर बेचारा थोड़ा फैट बढ़ा देगा, इसे कहते हैं फैटी लिवर। या कमजोर हो जाएगा, काम नहीं करेगा, कहेगा कि अरे कुछ गड़बड़ी हो गई। तो आप कमजोर हो गए तो आप काम ज्यादा नहीं करते, आप आराम करते, आपका लिवर भी आराम करेगा। तो इंसुलिन कहां गिरता है आपके शरीर में? इंसुलिन कहां गिरता है? लिवर में जाके गिरता है। अब उसको नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं करना, तो इंसुलिन को रेजिस्ट करेगा, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज, आपको डायबिटीज मालूम है क्या है? ब्लड में शुगर डायबिटीज नहीं है, आपका लिवर कमजोर हो गया, इंसुलिन नहीं ले रहा, या आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो इंसुलिन को लेना उन्होंने कम कर दिया, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसे डायबिटीज कहते हैं। आपके T4 T3 टेट्राहाइड्रोथायरोनिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है लिवर में, अब वो नहीं करेगा तो क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म। अब मुझे एक बात बताइए, डायबिटीज बढ़ रही है कम हो रही है? थायराइड बढ़ रहा है कम हो रहा है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है कम हो रहा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है? कैंसर बढ़ रहा है कम हो रहा है? इनफर्टिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? किसी को भी नहीं। हार्ट डिजीज नहीं था किसी को, थायराइड का कोई नाम भी नहीं था। तो जो आप ज्ञान समझ के पढ़ रहे हैं, क्या वो सच में सही है?
आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वी आर क्रिएटिंग दीज डिजीज, इनको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, या फिर ऐसे डिजीज जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आते हैं। तो पहले लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो गया। अब लिवर काम नहीं करेगा, तो कोई भी इंजन अगर खराब होता है तो क्या धुआं ज्यादा देता है ना, टॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आपके शरीर में डाइजेशन प्रॉपरली या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो टॉक्सिन बनेंगे। वो टॉक्सिन एसिड की तरह काम करता है, आपके शरीर के जॉइंट्स में जाके जमा होंगे, वहां पे ज्वलनशीलता, इन्फ्लेमेशन करेंगे और आपको दर्द होगा, है ना। आपके उंगलियों के जॉइंट के बीच में वो ज्वलनशीलता पैदा करेंगे और आपको दर्द होगा। तो पहली बात, मेटाबॉलिज्म से जो टॉक्सिन बन रहे हैं उसकी वजह से आपके शरीर में दर्द हो सकता है। अब मुझे एक दवाई बताइए जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कोई भी चीज बता दीजिए, आपका कोई फूड बता दो जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करे। ऐसा नहीं होता, मेटाबॉलिज्म आपके शरीर की एक क्षमता या शक्ति है। इसको आप ना तो भोजन से ना दवाई से तो खराब कर दिया, दूसरी दवाई बना के तो अच्छा नहीं कर सकते। सो आपको मेटाबॉलिज्म तो बढ़ाना पड़ेगा, पर ये मेटाबॉलिज्म है क्या, जरा इसको थोड़ा सा और समझते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी एक्टिविटी। अगर आप किसी चीज को ज्यादा, आपके शरीर के अंदर जान है, जोर है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। वो जोर कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। ठीक है, बॉडी एक्टिविटीज के टर्म्स में समझिए। अब एक बात मुझे बताइए कि ये सभी के लिए ये कॉमन है कि पीपल, इफ यू जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी नाना नानी याद है, वो फिजिकली आपसे ज्यादा काबिल थे, स्ट्रांग थे, या आप ज्यादा हैं? तो इसी से पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म आपका वीक है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया तो ये आपको वापस लाना पड़ेगा ना। जरा देखें, ये जान बनाने के लिए शरीर में हम करते क्या है, जरा देखें। ये आपको एग्जाम्पल भी दिया, थोड़ा उंगलियों को ऐसे क्लास्प कर लो, फंसा लो और खींचो। करेंगे सारे, सभी एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट सबको करना चाहिए। ठीक है ना, खींच के जरा रोकिए, जोर से खींचिए। देखिए आपने पीछे सांस रोक रखा, हाउ डू यू पुल, हाउ डू यू पुश, धक्का कैसे देते हैं, जोर लगाइए जरा, हाउ डू यू डू दिस, एफर्ट कैसे लगाते हैं, आपने सांस रोक रखा। जंप कैसे करेंगे, बिना सांस रोके जंप नहीं कर सकते। अगर आपको बैलेंस बनाना अपना, कोई कोई इंसान आपको धक्का देता, आपको अपना स्टेटस बना के रखना है, गिरना नहीं है, कैसे रोकते हैं अपने आप को? सांस रोक के। एक पांव पे खड़े होते हैं, बैलेंस बनाना है, कैसे बनाते हैं? सांस रोक के, है कि नहीं? तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया तो क्या वीक हो गया? आपकी सांस रोकने की क्षमता वीक हो गई, कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ हैज बिकम वीक। ठीक है, इसे हम कुंभक कहते हैं। योर बॉडी फंक्शंस अराउंड अ सेंटर पॉइंट और अ सेंटर ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड कुंभक। वही बात आप अगर मैं सांसों के टर्म्स में बोलूं तो सांसों को रोक के हम ये काम, इस काम का अंजाम देते हैं। तो ये सांस रोक के हम कई सारे ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं अपने बॉडी में। आपको उल्टी करना है, मालूम है आपकी सांस रुकती है। व्हेन यू गेट इनटू कॉन्स्टिपेशन, यू पुश, यू होल्ड योर ब्रेथ एंड पुश, इजंट इट? तो आपके जोर लगाने का तरीका ही है, सांस को रोक के जोर लगाते हैं। अब वेट उठाना है आपको, कोई भी भारी वेट उठाना है, हाउ डू यू लिफ्ट वेट? बिना सांस रोके वेट लिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपको बढ़ाना है अपने शरीर का, तो वो फूड से नहीं होगा, केमिकल से तो 100% नहीं होगा, उसी से खराब हुआ है, फूड से भी नहीं होगा। तो हम वो कोर इस्तेमाल अगर करें, कुंभक को इस्तेमाल करें, तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने लग जाएगा। ठीक है, ये एक चीज बताइए, आपके ऑर्गन स्ट्रांग, और टेक्निकली बता देता हूं, लिवर को स्ट्रांग करना है। केवल सांसों के टर्म्स में बात करता हूं, क्योंकि कुंभक इज अ वेरी वेरी बिग यूनिवर्स। 100 साल भी कुंभक के ऊपर रिसर्च हो तब भी कम पड़ेगा। तो आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इफ यू वांट टू रिजुवनेट योर लिवर, लिवर को आपको रिजुवनेट करना, तो ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा लिवर की तरफ में। जैसे आप शरीर को सांस रोक के इसमें स्ट्रेंथ लेके आते हैं, तो लिवर का स्ट्रेंथ भी जो है वो सांस रोक के आप उसको ट्रिगर देके ये स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सपोज 5 सेकेंड इज 1 यूनिट, 5 सेकेंड का 1 यूनिट है। 1 यूनिट का इनहेलेशन,
1 यूनिट का होल्ड, रोक लेना सांस को, 4 यूनिट का एक्सेलेशन अगर करेंगे तो आपके लिवर की तरफ में ट्रिगर जाता है, आपका लिवर रिजुविनेट होना शुरू होगा। किडनी पे कैसे लेके आएंगे, किडनी को रिजुविनेट करना है तो 4 यूनिट का इनहेलेशन, 2 यूनिट का होल्ड, 1 यूनिट का एक्सेलेशन करेंगे तो किडनी रिजुविनेट होना शुरू हो जाएगा। मगर एक और बात बताऊं, यहां पे एक कैच है कि आपका किडनी, आपका लिवर, आपका हार्ट, ये सब आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो केवल एक चीज को रिजुविनेट करने से काम नहीं चलता, इट हैज टू बी होलिस्टिक। जो प्रॉब्लम एरिया है उसको ज्यादा थोड़ा तवज्जो देंगे, थोड़ा ज्यादा उस तरफ में काम करेंगे, और बाकी एरियाज को भी हम एड्रेस करेंगे। सो इसीलिए कस्टमाइजेशन जरूरी है। एक तरीका बता दिया। दूसरा, नेक्स्ट, रीजनरेशन। जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, आपके बॉडी में सही चीजें जाएंगी नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपके बॉडी का फ्लो ठीक नहीं होगा, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, रीजनरेशन नहीं होगा। तो आजकल नसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, नसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। जैसे ड्रॉप फुट हो गया, आपकी घुटने की प्रॉब्लम केवल मेटाबॉलिक इशू ही नहीं हो सकता, वो भी एक हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, जो नसें जा रही है ना घुटने के साथ में और हड्डियों के साथ में, जो स्केलेटल नर्व्स कहते हैं, वो जो जा रही है ना, वो रीजनरेट नहीं हो पा रही, वो बन नहीं पा रही, तो फंक्शनिंग कमजोर हो गई। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, एक नस और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो मसल है उस पर कंट्रोल ही नहीं, अपने आप ही फड़फड़ा रहा है, ठीक है ना। शोल्डर का इशू आ सकता है, आपके स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क होता है, ठीक है ना। ये भी इसलिए हो सकता है क्योंकि स्केलेटल स्ट्रक्चर और न्यूरो स्ट्रक्चर, ये दोनों कहीं मिसमैच, कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो दूसरा पक्ष जो मैं कह रहा हूं, डीजनरेशन की वजह से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तभी रीजनरेट होगा। ऐसे बहुत एग्जांपल हमारे पास में, बहुत प्रूफ हमारे पास में। लोगों को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, उनके 95% सेंसेशन वापस आ गए, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो गया, लॉकजॉ ठीक हो गया, ड्रॉप फुट ठीक हो गया। एक मैराथन रनर थी, वो हमारे प्रोग्राम में आई और डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो आप दौड़ नहीं सकते कभी लाइफ में। और उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि 1 साल का टाइम दो। कहती 1 साल क्या, मैं 3 साल का, 4 साल, 5 साल का भी टाइम दे सकती हूँ। वो 6 महीने के अंदर मैराथन के लिए प्रिपेयर करने लग गई। तो रीजनरेशन चाहिए आपके बॉडी को, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो रीजनरेशन होगा। तीसरा फैक्टर है अलाइनमेंट। आपके शरीर में 3 तरीके की अलाइनमेंट चाहिए, नाभि, कौड़ी, नले। ये 3 अलाइनमेंट अगर ठीक नहीं होंगे, नाभि से आपका, अगेन उसको जोड़ के देखिए तो आपका मेटाबॉलिक इशू आता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कई लोगों को है, कई लोगों को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता है, और उसके बाद में पार्किंसन हो जाता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, यानी कि आपकी नाभि का अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं रहेगा, या नाभि का अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। दूसरा, आपके हार्ट लंग फंक्शन को अच्छा होना चाहिए, यानी हृदय को और फेफड़ों को, इसका फंक्शन जो होता है वो कौड़ी के अलाइनमेंट की वजह से होता है, छाती का मिडिल पार्ट। और दूसरा, आपका पूरे बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट जो होता है, हड्डियों का अलाइनमेंट जो होता है, वो आपके नलों की वजह से होता है। कमर के नीचे जो जांघें हैं ना, वो डिसाइड करती है कि आपके पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट होगा कि नहीं। अगर वो अलाइनमेंट नहीं होगा, तब कई लोग यहां पे होंगे जो कहते हैं कि ओके मेरे को ना लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई कहेगा मुझे राइट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे हाथ हो चाहे पांव हो। तो वो केवल आपकी रीढ़ की हड्डी जहां से नसें निकलती है, वहां पे अलाइनमेंट ठीक नहीं है। वो अलाइनमेंट जैसे ही ठीक होगा वो प्रॉब्लम चल जाएगी। आप गाड़ी को उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट कराते हैं ना, मगर अपने शरीर को तो खूब खराब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अलाइनमेंट की कोई दुकान है ही नहीं है आपके पास में, जहां जाके आप अपने शरीर का अलाइनमेंट करा दो। तो ये वो जगह है जहां रोज के रोज आप अपना अलाइनमेंट करोगे। तो हम प्रोग्राम में 3 चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास, मर्म विन्यास या हठ विन्यास। ये हठ विन्यास जो है ना, ये आपके बॉडी का अलाइनमेंट का सबसे पावरफुल तरीका है। इसमें हम ब्रेथ होल्ड करके बॉडी को एक तरीके से मूव करते हैं, जिससे कि नसें अगर दबी हैं तो वो खुल जाएंगी, जिसे अगर जॉइंट में स्ट्रेंथ नहीं है, जिसे हम व्यान पक्ष कहते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर का इशू किसी को है तो वो सेटल हो जाएगा। मेटाबॉलिक इशू, डायबिटीज, थायराइडिज्म, है ना, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के अराउंड में डिजाइन किया गया। तो पहले आपको असर कहां पे आएगा न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में, पेन फैक्टर्स,
शूल जिसे कहते हैं हम, अगर पेन का संस्कृत में जो टर्म है वो शूल। कुंभक थेरेपी, तीसरा पार्ट जो हम करवाते हैं कुंभक थेरेपी, उसके अंदर 3 तरीके के शूल करवाते हैं, पेन से रिलीफ के प्रैक्टिसेस करवाते हैं। केवल यही नहीं, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ पेन के लिए हम एक शॉर्टर वर्जन 3 घंटे का एक अलग से प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम कुछ सपोर्टिव हर्ब और मिनरल कैसे इस्तेमाल करें इमीडिएटली अगर आपको पेन से रिलीफ पाना है तो वो भी बताते हैं। लेकिन पेन ठीक हो जाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ये नहीं होता, प्रॉब्लम ठीक हो जाने से पेन ठीक हो जाएगा ये सही तरीका है। तो जो दर्द की गोली खाते हैं ना उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन क्या करें, और कोई चारा दिखता नहीं है तो खाना पड़ता है। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए तो खा लो, मगर कम से कम अपना ट्रीटमेंट तो करो, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करें, अलाइनमेंट इंप्रूव करें, स्ट्रेंथ फैक्टर्स बढ़ाएं। देखो 3 चीजें समझिए आप, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, ये 3 चीजों पे आपका शरीर काम करता है। इसी को हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो भाव, राग और ताल, थोड़ा इसका मार्मिक अर्थ है, भाव, राग, ताल। भारत, भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ की कुंजी छुपी हुई है। और ये तीनों चीजें, स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम, ये बिना सांस को रोके आप नहीं कर सकते। ये मैंने पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया। तो अगर आप इन 3 चीजों को ठीक कर लेंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है रिकवर कर लेगी किसी भी डिजीज से, किसी भी डिजीज से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं। रिस्क जब भी आप बनाएंगे, जब गोली खाते हैं तो रिस्क बन जाता है ना, जब एनवायरनमेंट खराब है, फूड खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, तो रिस्क है बॉडी के लिए। तो ये रिस्क से बचाने के लिए आपका शरीर जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स देता है, बचाने का प्रक्रम करता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस रिस्क है ना, एनवायरनमेंट खराब है तो ऐसा नहीं है तो सुबह 5 बजे खराब था 6 बजे ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है। जो दवाई खाते हैं बचपन से खा ही रहे हैं आप, ड्रग एडिक्ट हैं बेसिकली। जो फूड खराब कर दिया हमें तो हमने पूरे 24 घंटे क्या खराब कर दिया। जब भी खाएंगे वो खराब भोजन ही खाएंगे, चाहे आप कितना ही अच्छा ढूंढे। हाइब्रिड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनऑर्गेनिक से तो आप बच ही नहीं सकते। तो 24 घंटे का रिस्क शेयर आता तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता, उससे रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता, आप उससे लड़ते या भाग जाते। थोड़े समय का था, ये तो 24 घंटे का, तो इम्यूनिटी को समझ में नहीं आता ये कैसा रिस्क बना दिया। तो वो उठता है और फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड उसको नीचे कर देता है, कहता है अभी कुछ भी नहीं है रिस्क, नीचे जाओ। फिर उठ जाता है, फिर नीचे, फिर उठ जाता है, फिर नीचे। से कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? 100%। कौन बचा सकता है, कौन ठीक कर सकता है आपको? आपका शरीर ठीक कर सकता है। आपके शरीर के अलावा कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। लाखों सालों से हमें कोई डिजीज नहीं था क्योंकि हमारा शरीर हर बीमारी का इलाज इसके पास मालूम है। पिछले 100 साल में ही तो डिजीज हो रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज, वो भी खास करके। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये शरीर का तरीका है अपने आप को ठीक करने का, हम उसे ठीक नहीं करने देते। कोरोना होता है, हमारा शरीर फीवर गर्म कर देता है कोरोना को मारने के लिए। 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का तो कोई भी कोरोना मर जाएगा, मगर हम मरने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? एक पैरासिटामोल, एक डोलो, क्रोसिन खा के उसको कम कर देंगे। उल्टी आएगी तो उल्टी बंद कर देंगे, दस्त आएगी तो दस्त बंद कर, सफाई नहीं करने देते, है ना। कोई भी चीज, जैसे अभी का फैटी लीवर, आपका शरीर स्ट्रेस से आपको बचाना चाहता है, कॉर्टिसोल बनाना चाहता है, तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, आप उसे नीचे कर देते हो। आप शरीर को काम ही नहीं करने देते। आपके शरीर में फालतू का ग्लूकोज है, शरीर उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से बाहर निकालेगा, मगर आप नहीं निकालने दोगे। आप एक मेटफॉर्मिन खाओगे, डायबिटीज की दवाई खा के उसको अपने ऑर्गन में डाल दोगे, शुगर को, फालतू शुगर को, और ऑर्गन डैमेज होगा। फिर कहेंगे ऑर्गन डैमेज हो रहा, मगर आप ही ने तो किया। सबसे पहली बात, आप शरीर को क्रिमिनल क्यों बना रहे हैं? अपने ही शरीर को, जो किसके पास सब मालूम है कैसे अपने आप को ठीक करना। लाखों करोड़ों साल से इस ह्यूमन बॉडी ने कोई डिजीज क्रिएट नहीं किया। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो आप ज्ञान समझ रहे हैं, क्या वो ज्ञान है? क्या वो साइंस है? साइंस का टैग लगा दो कहीं पर भी तो साइंस बन जाता है क्या वो? ये आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। नहीं तो बताइए कि जब आप आईसीयू में क्रैश में चले गए, घुटने बदलवा दिया, उसके बाद घुटने काम करना ही बंद कर गए, है ना। हर चीज का इलाज क्या है? किडनी खराब है, किडनी बदलवा दो, घुटने खराब है, घुटने बदलवा दो, लिवर खराब है, लिवर बदलवा दो, हार्ट खराब है, हार्ट बदलवा दो। यानी कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकते।
लेकिन आप कर सकते हैं, आपका शरीर कर सकता है। इसको मौका दीजिए, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको मौका दें। साइंस के नाम पे ये बेवकूफियां ना करें, है ना। जैसे कि गॉड के नाम पे, रिलीजन के नाम पे करोड़ों लोगों को मारा गया, साइंस के नाम पे अरबों लोगों को मारा जाएगा। बचाएगा कौन आपको? जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा क्या? क्रैश आएगा तो आपका परिवार वाले भी नहीं लेंगे, आपके देश की सरकार नहीं लेगी, हॉस्पिटल, WHO जिसका नाम का गुणगान करते हैं वो नहीं लेगा। दवाई खाते हैं तो अमेरिका को कट जाता है, हथियार बनाता है, दुनिया पे चौधरीपना करता है, वो जिम्मेदारी लेगा आपकी? नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। आपका शरीर लेता है, आपका शरीर ही लेगा। इसके फोर्सेस, इसके फैक्टर्स, इसके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, इसके हार्मोन का स्ट्रेंथ, है ना, इसको आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको एक पूरा हिंट दे दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम आपके शरीर के ऑर्गन्स को मजबूत कर रहे हैं, आपके शरीर के इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहे हैं, आपके शरीर के रिकवरी फैक्टर को स्ट्रांग कर रहे हैं, और इससे आप किसी भी बीमारी से निकल सकते हैं। पूजा अरोड़ा जी राइट्स फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप का बता दिया, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल। योगेश जी लिखते हैं कमर दर्द, कमर से लेकर पैर के तलवों में जलन, दर्द, झुनझुनी, हाथ में झुनझुनी की दवा बताएं, ये कैसे मिल जाएगी ये भी बताएं। 2-3 चीजें मैंने जो पहले भी बता दिया। ये नसें अगर दब रही हैं आपके रीढ़ की हड्डी के, या रीढ़ की हड्डी कमजोर है, तो पहली बात तो एक काम कीजिए, 33 पत्थर, चपटे पत्थर होते हैं ना गोल गोल, वो लेके आइए, बीच में ड्रिल करो, रस्सी लगा दो। ठीक है ना, रस्सी को खींचोगे तो सारे पत्थर अलाइन हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। रस्सी को ढीला छोड़ोगे तो पत्थर खिसकेंगे या दबेंगे, उसके बीच में नसें दबेंगी, तो स्लिप डिस्क हो रहा है आपको। एक बात बताइए, ये जो टेंशन है इसको कौन स्ट्रांग करता है? कौन सी दवाई, कौन सी सर्जरी? जिसको हम व्यान पक्ष कहते हैं। ठीक है, ये कैसे स्ट्रांग होता है? ये मैं आपको बता दूं कैसे स्ट्रांग होगा। व्यान पक्ष है क्या, मैं आपको बता देता हूं इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ, और भी तरीके से बता सकता हूं, केवल ब्रेथ के टर्म्स में, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, और भी बॉडी मूवमेंट के टर्म्स में भी बता सकता हूं व्यान क्या होता है। अगर आप सांस लेने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है और रोकने की क्षमता अच्छी है, मगर मैक्सिमम रोकने के बाद अगर इजी एक्सलेशन कर पाए आप, इसे व्यान स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या बताया, दोबारा से सुनिए। मैक्सिमम इनहेल करने के बाद, मैक्सिमम रोकने के बाद, अगर उसके बावजूद भी आपकी एक्सलेशन एकदम से ना छूटे, आराम से हो, इतनी स्ट्रेंथ, जो वो स्ट्रेंथ जो बॉडी में होती है, उसको व्यान शक्ति कहते हैं। इसी की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी में जो टेंशन है वो प्रॉपर बरकरार रहता है। अगर उसको हम बढ़ा सके और रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा हम खोल सके, जो कि हम हठ विन्यास में करते हैं, तो क्या होगा? ये झुनझुनी अगर दबाव के कारण आ रहा है, ये टिंगलिंग सेंसेशन अगर दबने के कारण आ रहा है, तो खुल जाएगा। दूसरा रीजन रीजनरेशन, मैंने बता दिया, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, आपकी नसें रीजनरेट हो जाएंगी, तो भी ये ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको बता रहा हूं, ये ऐसे ठीक होता, कोई दवाई नहीं होती इसकी, हो सकती नहीं, बाकी तो छोड़िए। आप दवाई से ये खराब किया आपने, दूसरी दवाई लाके और खराब कर देंगे, ये कभी दवाई से ठीक नहीं होता। ASH राइट्स टिक टिक इन नेक। हाँ, टिक टिक, देखो टॉक्सिन का डिपोजिशन है ना। टॉक्सिन्स कई तरीके से होते हैं, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। हमारे शरीर में अगर डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फर्मेंटेशन, दोनों अलग अलग चीजें। सड़ना और पचना दोनों अलग अलग चीजें। अगर पचेगा नहीं तो सड़ेगा। पचने के लिए आपके गट का माइक्रोबायोटा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी कि वहां पे जो पचाने का काम कौन करता है? आप ही नहीं करते, छोटे छोटे कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं आपके पेट में। जैसे ही आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक दवाई खाते हैं, कोई भी लिक्विड जो कि नेचुरल नहीं है, वो आप अगर लेंगे, तो आपका गट में जो माइक्रोबायोम है, जो कीटाणु है, मर जाएंगे, तो आपका पाचन शक्ति जो है कमजोर हो जाएगी। तो डाइजेशन होने की जगह क्या होगा? फर्मेंटेशन, गैस बनेगी। तो गैस तो कहीं ना कहीं जाके अटकेगी ना, जहां उसको जगह मिलेगी वहां पे वो डिपॉजिट होती है।
फिर आप थोड़ा जोर लगा देते हैं तो कट से आवाज आती है, वो गैस रिलीज है। ठीक है ना, यही गैस जब आपके सिर पे चढ़ जाती है तो माइग्रेन करती है। यही गैस जब कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो पार्किंसन करती है। ठीक है ना, पार्किंसन लेके आती है। तो जो फ्लो बॉडी का है ना, जिस तरीके से होना चाहिए, फ्लो अगर बिगड़ेगा तो फिर ये डिविएशंस होते हैं। कुंभक क्या है, आप अंदर सांस रोक के फ्लो को बनाएंगे ना। अगर आप सांस भी रोकते हैं या बॉडी का फ्लो करते हैं तो भी आप अपने बॉडी के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसको स्ट्रांग करेंगे, आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक छोटे बच्चे को या फिर जवान इंसान को टच करिए, छू के देखिए, और एक बूढ़े इंसान को छू के देखिए, क्या फर्क नजर आएगा दोनों में। एक जवान इंसान का जो शरीर होता गर्म होता ज्यादा, या बच्चे का शरीर गर्म आपको मिलेगा। एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता। तो उम्र जब आगे बढ़ी तो क्या चीज खो दिया इंसान ने, इसे कहते हैं जठराग्नि, गार्हपत्य अग्नि, या फिर इसे मेटाबॉलिक हीट कहते हैं, चीजों को पचाने की क्षमता। इसीलिए उम्र बढ़ते बढ़ते चीजों को पचाने की क्षमता कमजोर होती जाती है और हमारा डाइट जो है वो कम होता जाता है। पर आजकल हम उसको किसी ना किसी तरीके से जबरदस्ती बढ़ा के रखते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। मगर मेटाबॉलिक हीट, अब एक काम कीजिए, एक्सपेरिमेंट कह रहा हूं करने के लिए, कभी बैठे हो आराम से, सांस को रोकिए जितनी आपकी क्षमता है, जितना आराम से रोक सकते हैं, और फिर सांस को छोड़िए। ऐसा आप 10 मिनट के लिए कीजिए, है ना। आप देखेंगे आपको पसीना आने लग जाए, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। तो आपने तो कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो ये जो सांस आपने रोका, इससे हुआ क्या, आपके शरीर का मेटाबॉलिक हीट बढ़ गया। कभी कभी ये ज्यादा भी बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा तकलीफ होने लग जाएगी। तो ये बहुत पावरफुल तरीका है अगर आप शरीर के अंदर कोई फंक्शन को रेगुलेट करना चाहते हैं, या उसको बढ़ाना चाहते हैं, या स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं। इसीलिए इसको गाइडेड तरीके से करने की जरूरत पड़ती है ना। इसको टिप की तरीके से नहीं दिया जा सकता, इसको गाइडेड वे में ही करवाया जा सकता है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि आप करके देख सकते हैं कि कैसे आपका मेटाबॉलिक हीट या फिर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव किया जा सकता है। इससे आपकी एंटी एजिंग भी होती है, आपकी जो उम्र है उसका पता कम चलेगा, पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैं सामने हूं, आई एम अप्रोचिंग 50, मैं 50 की उम्र का हूं, और आप देखिए कि इतना ज्यादा पता नहीं चलता। तो कुंभक से एंटी एजिंग भी होती है। एंटी एजिंग ऐसी नहीं कि एंटी एजिंग कोई फैक्टर है, कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए आपके। जब तक जिए तब तक आप पावरफुल तरीके से, इंटेंस तरीके से जिए, अच्छे तरीके से जिए, बिना किसी बीमारी के जिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। उम्र तो हमेशा खत्म ही होती है और उसको खत्म भी होना चाहिए, लेकिन एज जो भी, जितना भी आपका जीवन हो, वो बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाला हो, और बहुत इंटेंस हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए इस दुनिया के लिए। ये जरूरी है, ये सबके लिए, ये जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए, और कुंभक वो चीज आपको 100% देगा। Sunita Mehta ji writes BP, arthritis, tennis elbow and depression. पहली बात, डिप्रेशन की बात जहां तक करूं, कौन सी दवाई है जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है? एक्चुअली ये केवल एक फैंसी आइडिया है कि दवाई आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है। ठीक है ना, थोड़े देर के लिए अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फायदा हो गया, तो आपको लंबे समय के लिए आपके शरीर को नुकसान हो जाता है। पहली बात, मेंटल या माइंड से रिलेटेड कोई भी डिजीज दवाई से ठीक नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, डिप्रेशन क्यों होता है एक इंसान को? अगर आपके अंदर किसी सिचुएशन को झेलने के लिए काफी एनर्जी है तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। फेलियर से लेके कोई भी आपको नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आ सकती। पहली बात तो जिसे हम कहते हैं ना कि एक मायूसी का कोई रीजन ही नहीं है इस दुनिया में। या तो एक काम को आप कर सकते हैं या तो एक काम को नहीं कर सकते, और दोनों में ही मायूस होने की जरूरत नहीं है। या तो आप कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए, नहीं कर सकते
तो उसके लिए मायूस होना बेकार की बात है। यही दो सिचुएशन है, या तो किसी काम को आप कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। तो एक्चुअली मायूसी का कोई रीजन ही नहीं है दुनिया में, ये हमने क्रिएट किया है। और ये कहां से जुड़ती है, ये कहां से रिलेट करता है, आपके अंदर क्या क्षमता, कैपेसिटी क्या है किसी सिचुएशन को झेलने की। अगर वो बढ़ा देंगे तो आप किसी भी सिचुएशन को झेल जाएंगे। किसी भी सिचुएशन से मायूसी या डिप्रेस फीलिंग नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुंभक किसी भी तरीके के मेंटल डिजीज से आपको निकाल देता है। दूसरी बात, कोई भी बीमारी आपके माइंडस्केप में पहले आता है, आपका एनर्जी सिस्टम में पहले आता है, उसके बाद आपके शरीर में आता है। तो अगर आप फिजिकल रूप से प्रॉब्लम में हैं तो आप मानिए शायद नहीं मानिए, माइंड का तो इशू है ही। केवल डायग्नोज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो ज्यादातर लोग इस दुनिया में किसी ना किसी तरीके के मेंटल डिजीज से सफर कर ही रहे हैं। कुछ लोगों को केवल डायग्नोज कर दिया गया, टैग लगा दिया गया कि भाई आपको बाइपोलैरिटी होगी, डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, और पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, आप किसी भी तरीके के मेंटल इश्यू से आराम से निकल जाएंगे, बशर्ते आप थोड़ा समय दें। आप थोड़ा समय दें अपने आप को, आपका शरीर रिकवर कर जाएगा, आपका माइंड 100% रिकवर करेगा। दूसरी बात, बीपी, ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ठीक है, आप जरा समझिए। ब्लड प्रेशर होता क्या है, किसी को मालूम है क्या? शायद आप लोगों में से सभी लोगों को मालूम है, मगर किसी भी साइंटिस्ट को नहीं मालूम। मैं अभी आपको एक छोटा सा एक झटका सा देता हूं। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ये सभी को मालूम है ना? सभी को मालूम है, हाथ उठाइए, सभी को मालूम है ना हार्ट ब्लड को पंप करता है? सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखिए, हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं, तो आपको मालूम क्या, ये गलत चीज मालूम है। ये कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं आपको। 10,000 साल पहले हमने कहा हृदय, यानी खींचना और छोड़ना। हृदय, हृदय, हृदय का नाम क्या है? हृदय क्यों रखा? क्योंकि खींचता है, छोड़, ये पंप नहीं करता। और आज मॉडर्न साइंस यही पता, इसी निष्कर्ष पर निकल के ये आ रहा है कि हार्ट तो ब्लड को पंप ही नहीं करता। ब्लड का प्रेशर कभी भी आपके आर्टरीज पे नहीं जा सकता, ये फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट में है। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ के देखिए, अगर किसी ने साइंस लिया होगा तो 11वीं 12वीं क्लास में बर्नौलीज थ्योरम है। उसके हिसाब से लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर, और आपको तो ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। तो क्या आप ब्लड प्रेशर नापने के लिए पट्टा लगाते हैं? तो क्या आप ब्लड को दबाते हैं? आप तो मसल दबाते हैं, आप तो टिश्यूज को दबाते हैं। तो प्रेशर किसका निकल के आ रहा है? प्रेशर किसका निकल के आ रहा है? बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। और आज के टाइम पे एलोपैथी अपने आप को क्वेश्चन भी कर रही है, मगर क्या है कि एक बड़ा इसका जो पक्ष है वो नहीं करना चाहता क्वेश्चन। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है आपको तो मालूम ही नहीं है, आपको ही नहीं, किसी को मालूम नहीं है ब्लड प्रेशर क्या होता। तो ठीक कैसे करेंगे मुझे बताइए? ब्लड प्रेशर दुनिया में बढ़ रहा है या ठीक हो रहा है? तो मालूम ही नहीं है तो ठीक कैसे करेंगे? मगर हमारे प्रोग्राम में आके देखिए, ब्लड प्रेशर प्रोग्राम में अभी अभी मैं एक बंदे का टेस्टिमोनियल, उसने लिखा, कहता मैं बचपन से मुझे ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ, बचपन से गोलियां ले रहा था, और पिछले 1 महीने से मेरे डॉक्टर ने गोलियां बंद कर दी, और तब भी मेरा ब्लड प्रेशर लो जा रहा है। कुंभक करने की वजह से, कुंभक करने की वजह से आपका शरीर को शक्ति मिल जाती है, फिर वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। ब्लड प्रेशर एक्चुअली आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब आपके अंदर जो व्यान शक्ति है वो कम होती है, तब शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ा के उसको कॉम्पनसेट करता है। अगर वो आप नेचुरली बढ़ा दें तो शरीर को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट डिजीज से बहुत आसानी से निकला जा सकता है। हार्ट के लिए सर्जरी हमने कभी नहीं बताया, हर चीज के लिए सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी तो हमारी देना दुनिया को। महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी को कंपाइल किया था। तो हमने कभी नहीं बोला कि हार्ट के लिए कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और आज के मॉडर्न एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि जो हार्ट की सर्जरी है
एंजियोप्लास्टी है, ये सही चीज नहीं है। लेकिन आप तक ये खबर पहुंचते पहुंचते 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाएंगे। तब तक लोग अपना धंधा कर चुके होंगे, लोग पैसा कमा चुके होंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कर चुके होंगे। मगर इतने समय में जो आपको नुकसान दिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि कानून ऐसे बनाए गए हैं कि अगर आप खत्म भी हो जाते हैं तो भी चलेगा। ठीक है ना, प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक कर सकते हैं? और दूसरा तरीका बताऊं, ब्लड प्रेशर के मरीज को होता क्या है, जब वो जोर लगाता है तो उसकी सांस तेज चलने लग जाती है, हांफने लग जाता है। यानी उसकी सांस रोकने की, सांस रोक के आप काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई। सांस रोकने की क्षमता आप बढ़ा दीजिए, आप खूब काम करेंगे, सांस नहीं चढ़ेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। लेकिन दवाई खा के ब्लड प्रेशर कम करते रहो, हार्ट डिजीज हो जाएगा, और उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं समझेंगे, कल नीलम, कल जब क्रैश होगा तब समझेंगे, तो फिर वो ठीक नहीं है। Neelam ji writes, frozen shoulder and eyelid dropping issue. लॉक जॉ भी, और या फिर टेनिस एल्बो भी पहले वो होता, फ्रोजन शोल्डर। अब इनके बारे में बता देता हूं। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, जम गया। तो मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं, हाँ, और भी तरीके हैं। आपके शरीर में जब हीट कम होता है तो आपके शरीर में फूड ठीक से डाइजेस्ट होके आगे नहीं जा पाता, इसे कहते हैं कफ वात दोष। आयुर्वेद में इसको है ना, आयुर्वेद में इसको कहते हैं कफ वात दोष। ठीक है ना। जो कफ वात वाले या कफ वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये डाइजेस्टिव हीट, गार्हपत्य अग्नि शरीर की जो होते हैं वो कम होती है। तो जब भी आपके शरीर में हीट कम होगा ना, तब आप देखेंगे कि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आएगा। ठीक है ना, स्टिफनेस आएगा। टेनिस एल्बो का मतलब वो पूरा का पूरा खुल नहीं पा रहा, अटक रहा है। एक काम करें, आप थोड़ा सांस रोकें। मैं आपको एक सिंपल सा इलाज बता रहा हूं, देखो ये ना, फिर से बता रहा हूं, दीज आर टिप्स, ये टिप्स हैं, टिप्स से कोई भी ठीक नहीं होता, थोड़ा रिलीफ किसी को मिल सकता। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रादर बोल रहा हूं कि जो टेनिस एल्बो जहां पर भी वो है आपको अटकता है, आप सांस रोक के ना उस एरिया को टाइट करके देखिए, वो खुल जाएगा। या थोड़ी देर आप अगर शरीर में गर्मी पैदा कर देंगे तो आपके जॉइंट्स ना खुल जाते हैं। तो मैं बचपन से एक हठ योगी भी रहा, हठ योगी। तो ऐसे कई लोगों को जो हठ योगा या फिर जैसे कहते हैं योगासन करते हैं और वो उनकी बॉडी बहुत स्टिफ है, ये आप भी कर सकते हैं। खड़े हो जाइए, दोनों पांवों को साथ में, एड़ियों को साथ में रखें और ट्राई टू टच योर फोरहेड विथ योर नी। अपने माथे से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करें, देखिए कितनी दूर पहुंचते हैं। देन डू कुंभक फॉर सम टाइम, 15 मिनट के लिए कुंभक करिए, फिर टच करने की कोशिश की, आप देखेंगे कि ज्यादा पहुंच रहे, ज्यादा क्लोज आ गए। क्या हुआ, आपके जॉइंट्स में थोड़ी हीट की जरूरत है। गर्मी भी अगर दे देंगे ना, थोड़ा हीट भी गर्म कर देंगे तो भी खुल जाता है। लेकिन वो क्या टेम्परेरी है ना, वो मैनेजमेंट, बाहर से आपने कुछ कर दिया, शरीर तो नहीं कर रहा, शरीर में वो कैपेबिलिटी या काबिलियत कम होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो शरीर को की काबिलियत बढ़ा रहे हैं। बाहर से आप थोड़ा हीट दे दो, आराम मिल जाए, ये तो मैनेजमेंट हुआ, ये तो ट्रीटमेंट नहीं है। आपके शरीर की क्षमता अगर बढ़ा दें तो होगा ही नहीं, वो ट्रीटमेंट है। ठीक है ना। तो मैंने ये जो लॉकिंग और फ्रीजिंग है ना, स्टिफनेस, इसका इलाज, सिंपल इलाज बताया। इसमें और भी चीजें हैं, मगर क्या है कि ये यूनिवर्सिटी क्लास बन जाएगी। मैं तब से बोले जा रहा हूं इतनी सारी बातें, कई चीजें तो आपके ऊपर से, सिर के ऊपर से निकल गई होंगी। तो दूसरी बात है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड गिर रहा है, ये नस की कमजोरी की वजह से। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। सपोज कीजिए आपके हाथ हिलते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते, कई लोगों के साथ में ऐसा होता है। ठीक है ना, वो धीरे धीरे, ये पार्किंसन में भी ऐसा होता है और नसों की कमजोरी में भी होता है। आपको जब कमजोरी फील होगी, चाहे आपकी कोई भी एज हो, उस समय भी कभी कभी होता है कि हाथ पांव कांपते हैं।
आप अचानक से बैठ के उठेंगे तो वो कांपेंगे, वो एकदम से नहीं होते, फिर थोड़ा चलने पे स्टेबल आते हैं। ठीक है, न्यूरोपैथी होता है डायबिटीज वाले लोगों को, अदरवाइज भी और लोग दूसरे लोगों को होता है, उसमें भी होता है। तो हो क्या रहा है, आप इसको बेसिकली मूल रूप से समझने की कोशिश कीजिए। वो ड्रूप क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, अपने आप ही हो रहा है। ठीक है ना, तो वहां पे या तो नसें डीजेनरेट कर गई होंगी, है ना। तो कंट्रोल कैसे करते हैं आप किसी चीज के ऊपर? सपोज कीजिए आपके हाथ कांप रहे हैं और आपको स्थिर करना है, उसको कांपने से रोकना है, तो आप करोगे क्या? आप उसको मुट्ठी बांध के टाइट कर लोगे तो थोड़ा रुक जाएगा। तो ये टाइट कैसे किया आपने? सांस रोक के किया। आप लिम्स पे कंट्रोल कैसे करते हो? सांस रोक के करते हो। तो अगर कंट्रोल नहीं हो रहे तो करने के लिए अगर आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे तो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये चीज हमने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को के ऊपर देखा। तो कहते हैं कि अगर आप एक स्माइल करते हैं तो 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं आपके बॉडी में, मालूम है आपको? थोड़ा स्माइल कीजिए, देखिए प्रॉब्लम तो ठीक नहीं, हमने ऐसा बना दिया। देखो आपने अपनी सारी हेल्थ फिरंगियों के ऊपर डाल दी, गोरों के ऊपर डाल दी, जो सबसे बेवकूफ प्रजाति है दुनिया की। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में इतनी बेवकूफ प्रजाति नहीं हुई, आपने उनके ऊपर डाल दिया। तो भाई ठीक तो कोई नहीं रह सकता, ये तो 100% गारंटीड है। ठीक है, तो कम से कम स्माइल कीजिए, एक सोल्यूशन मिलेगा, एक कुंभक का सोल्यूशन मिला है, इससे आपकी लाइफ तो 100% ठीक होने वाली है, गारंटी है। लेकिन आपने कहा, आप अगर कहते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं समझ में आ रहा, नहीं नहीं ज्वाइन करना, ना ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो आपकी मर्जी। अगर आज आपको सोल्यूशन चाहिए तो अपने शरीर को मजबूत करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं। अच्छा, 1 लाख केमिकल रिएक्शन एक स्माइल करने में। और सपोज कीजिए आपने कंडीशन लगा दी कि भाई मुझे जब तक वो 1 लाख केमिकल रिएक्शन पता नहीं चलेंगे मैं स्माइल नहीं करूंगा या करूंगी। फिर मुझे बताइए आप कब स्माइल करेंगे? ये विडंबना है साहब एलोपैथी की। वो मुझे 1 अरब केमिकल रिएक्शन पता चलेंगे तभी हेल्थ आएगा, ना कभी नॉर्मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। आपकी लाइफ बेकार में खराब हो रही है। तो ऐसे नहीं होता। आप बिना जाने भी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं, केवल आपको जानने की जरूरत है वो मैकेनिज्म क्या, वो तरीका क्या है। ठीक है ना, जैसे आप अपने मन में हल्के से अच्छे भाव लेके आ जाएं, आपके मन में थोड़ा हल्कापना, खुशी आ जाती है ना। आपको ये जरूरी नहीं है कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है ना। केमिकल डालेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे, आपकी काबिलियत वो खुश होने की कम हो जाएगी। आजकल कोई भी खुश नहीं है ना, सब कुछ अच्छा है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, फोन पे बात होती है, सब कुछ अच्छा है, मगर मन में खुशी नहीं। ये खुशी जो है, ये आप क्या आपको लाइफ में मिलता है इससे नहीं आती। आप कितने, आपका शरीर कितना काबिल है, आपका कितना कंट्रोल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कुंभक वही कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो आपको वापस देगा जो आपने खो दिया। ना मन पे कंट्रोल है, ना दिमाग पे कंट्रोल है, ना शरीर पे कंट्रोल है। ठीक है, ये कुंभक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, तरीका है, इसी से आप कंट्रोल करते हैं चीजों को। तो ये करेंगे, लाइफ में कंट्रोल आएगा, बॉडी में हेल्थ आएगा, माइंड में खुशी आएगी और आपकी लाइफ बदल जाएगी। निधि भारती राइट्स, घुटने में पानी भरने के कारण घुटने में सूजन बताया डॉक्टर ने, पर पानी क्यों भरा यह नहीं बताया, क्या आप कारण बता सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, जब आपके सिंक में, जो किचन का जहां बर्तन रखते हैं, उस सिंक में पानी जम गया तो आप क्या करते हैं? ठीक है, अगर जूस पी रहे हैं किसी स्ट्रॉ से और कोई पल्प फंस गया, आप क्या करते हैं? दोनों जगह पे थोड़ा जोर लगाते हैं ना। जोर आप कुंभक के बगैर नहीं लगा सकते। तो वाटर रिटेंशन हो रहा है। अब पहली चीज, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है ये कि जैसे ही कुंभक शुरू करते हैं बहुत गैस निकलती है। क्या हो रहा है? हमने अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया जिससे गैस, वाटर जो जमा हुआ है, फैट, कुंभक कुछ समय तक कर लीजिए, आप मोटे नहीं रह सकते। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मोटापा कभी नहीं आ सकता। तो
मैं 110 किलो का था किसी समय पे, ठीक है, आज मैं पाव पाव घी पी जाता हूं। तो घी से कोई भी मोटा नहीं होता, ये गलत फहमी है, ठीक है। घी से पतले होते हैं, रादर घी पिला के हम पतला कर देते हैं लोगों को। लेकिन कुंभक जो कर रहा हो, उसके शरीर में कोई चीज रिटेंशन रुक नहीं सकती, एक जगह जमा नहीं हो सकती, उसको फ्लो करना ही पड़ेगा, उसको निकलना ही पड़ेगा उस जगह से। हमारा थायराइड का प्रोग्राम होता है, लोग कहते हैं, लेडीज आती हैं खास करके, और वो अपना ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होती, तो वो कहती हैं कि भाई सुबह उठते थे तो चेहरा ऐसा लगता था जैसे फूला हुआ है, शरीर में कई जगह पे जमा हो जाती है, वाटर टेंशन हो जाता है, इस तरीके की चीज। और कुंभक करने लगे तो कहने लगे वो ऐसा लगता है कि कभी हुआ ही नहीं वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में। तो बहुत आसान भी है चीजें, चीजों को अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो समझ नहीं आएंगी, है ना। हमेशा ग्रीको रोमन शब्द से कोई चीज समझ में नहीं आती, है ना। आर्थराइटिस बोलने से आर्थराइटिस ठीक नहीं होता किसी का, चाहे उसके आगे रूमेटॉइड लगा दो, ये ग्रीको रोमन शब्द बोलने से कोई ठीक हुआ आज तक, बताइए। ये इतने बड़े बड़े ग्रीको रोमन नाम आपको सिखा देते हैं, कोई तो ठीक नहीं हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस बोल के, ऑस्टियोपोरोसिस किस इंसान का ठीक हुआ है बता दीजिए, दुनिया में एक इंसान बता दीजिए कैल्शियम खा के जिसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। तो नाम बोलने से ठीक नहीं होती, नाम बोलने से आप अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाएं तो ये हमारी बेवकूफी है ना। बहुत सिंपल से भी आप समझते हैं कि चीजों को कैसे ठीक किया जाता है। आप थोड़ा उस जगह पे जहां भी पानी की जमावट हो रही वहां पे थोड़ा टाइट कर दीजिए शरीर को, तो भी ठीक हो जाएगा। ये तो इतना आसान है। और हम तो आपके पूरे शरीर को ही रिजुवनेट करने का पूरा मॉड्यूल हमने डेवलप किया हुआ है। तो ये बहुत आसान चीजें हैं। रिटेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, और मूवमेंट करने के लिए मूवमेंट हमेशा कुंभक शक्ति पे होता है, जिसे आप शरीर का ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। खैर छोड़िए, इन शब्दों को छोड़िए, इससे कोई फायदा नहीं होता। कुंभक से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। Vivo V2142 writes, I was a good classical singer. Because of many problems, I could not continue my practice. Now my voice is trembling. My tune is not perfect. Is Kumbhak helpful? आपके लिए अगर क्लासिकल सिंगिंग आपका पैशन है, थोड़ा समय दे दें अपने शरीर को, आपका टैलेंट जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए, किसी काम को करने के लिए ना, उसको कैसे करना है से काम नहीं चलता। कोई भी एबिलिटी जो होती है वो आपके शरीर की एबिलिटी है। एजुकेशन सिस्टम में ये हम करवाते ही नहीं। हमको लगता है इंफॉर्मेशन दे देंगे तो भाई लोग बहुत टैलेंटेड हो जाएंगे। नहीं, आज के बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं कि ठीक से बैठ नहीं सकते। अगर उनको थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दें तो वो बेचारे मतलब उसको झेल नहीं पाएंगे। तो एबिलिटी जो होती है, सिंगिंग एबिलिटी भी जो है, जैसे मैंने 3 चीजें बताई आपको, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। लय, रिदम को ही लय बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके शरीर में, जैसे मैंने शुरुआत किया था, ट्रिगर मैकेनिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये लयबद्ध होना चाहिए, इसको सुर कहते हैं। तभी आपको ये चीज, आपका शरीर के अंदर हार्मोनल फ्लो ठीक रहेगा, एंजाइम का फ्लो ठीक रहेगा, जूसेस का फ्लो ठीक रहेगा, ब्लड का फ्लो ठीक रहेगा। ये लय है, इसी को सुर कहते हैं। और असुर इसका ऑपोजिट है, यानी रिदम खराब हो गया। ये शरीर में भी रिदम खराब हो गया, डिजीज हो गए। मगर आपका कंट्रोल, वॉइस बॉक्स पे जो कंट्रोल है वो आपके नर्वस सिस्टम से होता है। तो अगर आप कुंभक करें कुछ समय तक, अगर मैं आपसे 1 साल का, वापस से 1 साल का टाइम लूंगा, 1 साल के बाद आप जरा क्लासिकल सिंगिंग करके देखिए कि उससे पहले आपका लेवल क्या था जब आप अच्छे थे, और 1 साल के बाद आपका लेवल क्या है। बहुत बढ़ चुका होगा। यही नहीं बोल रहा मैं, लोगों को आजकल डिमेंशिया बहुत हो रहा है, शरीर का लय बिगड़ता है तो डिमेंशिया, याददाश्त ठीक नहीं रहती, भूल जाते हैं जल्दी। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। सांसों की रिदम भी ठीक नहीं रहती, ये भी इल हेल्थ की निशानी है। कुंभक आपके उसी रिदम को वापस लेके आएगा, तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं वो कुंभक के कारण बोल रहा हूं, मैं ये पढ़ा लिखा नहीं हूं।
आप समझिए, ये कुंभक के कारण मैं बोल रहा हूं। कुंभक वो शक्ति है मेरी, मेरे गुरु की शक्ति, जिसकी वजह से जो मेरी याददाश्त बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी वो वापस आई है। तो ये याददाश्त कैसे वापस आएगी? जब न्यूरो रीजेनरेशन होगा, जब नसों में कनेक्शन होगा, जब न्यूरो इलास्टिसिटी बढ़ेगी। इसको अंग्रेजी शब्द में ऐसे बोल दिया। देखो, अंग्रेजी बोल के कोई ठीक तो करता नहीं, कितने बड़े बड़े अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक तो करता नहीं कोई भी आपको। आपका शरीर ठीक करेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे वो बढ़ेगी? कुंभक से बढ़ती है। एक नस और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है, जुड़ाव जो है, वो कुंभक के जरिए होता है। तो याददाश्त बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, आपकी शरीर की और मन की क्षमताएं बढ़ जाएगी। घबराहट होती थी, घबराहट खत्म हो जाए। एंजाइटी होती थी, एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाए। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको काम करने में अच्छा लगेगा, एनर्जी पूरे दिन रहेगी, थकावट नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कैपेबिलिटीज आपके शरीर की गारंटीड 100% इतनी बढ़ जाएंगे जितनी आपकी जवानी में नहीं थी, अगर उम्र ज्यादा है तो। जो कैपेसिटी आपकी जवानी में नहीं थी, उससे ज्यादा उम्र बढ़ने के बाद बना सकते हैं। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, थोड़ा काम कीजिए, आपका टैलेंट परवान चढ़ेगा, ये गारंटीड है। Rituji writes, doctors told I have cervical and lumbar L4, S1 issues. I have pain in left side from neck behind ears to downward, shoulder and upper back. Many doctors state different reasons. देखिए, ठीक कोई नहीं करेगा। वापस से मैं वही बात कह रहा हूं आपको। नाम आप कुछ भी रख लीजिए, एक बीमारी के, कोई भी नाम रख लो, सर्जरी से ठीक नहीं होता। एक जगह प्रॉब्लम है, दूसरी जगह फिर आ जाएगी। बहुत इमरजेंसी है, शल्य या सर्जरी उस समय करवा सकते, मगर आप अपने शरीर को ठीक तो करेंगे कि नहीं, कि केवल मैनेजमेंट करेंगे? तो मैनेजमेंट से तो लाइफ आपकी ठीक नहीं होने वाली। सर्जरी कर दिया स्लिप डिस्क में, थोड़ा उस जगह पे आराम मिल गया, दूसरी जगह आ जाएगा। एक शोल्डर में किया, दूसरी शोल्डर में आ जाए। तो शरीर की जो शक्तियां हैं, जो उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपका इलाज कैसे होगा, ये तो बताइए। भाई आप सब कुछ करो, चलो मैंने कहा कि आप सब कुछ करो, मगर इलाज तो कर लीजिए, अपने शरीर को ठीक तो कर लीजिए। तो ठीक करने का तो एक ही तरीका है ना। ठीक करना तो शरीर जिस तरीके से ठीक करता है वही तरीका है, और वो कुंभक है। कुंभक कोई बाहर से नहीं आया, कुंभक आपके ही शरीर का रिकवरी मैकेनिज्म है, एपीजेनेटिक ट्रिगर है। आपके जेनेटिक्स को भी बदलता है कुंभक, आपके कर्म दोष को भी तोड़ता है कुंभक, नए अच्छे कर्म को भी स्थापित करता है कुंभक। जो कर्म बनते हैं वो भी कुंभक से बनते हैं। इस देश में तो हम कुंभ मेला भी मनाते हैं, हम कुंभ की स्थापना, कुंभ की पूजा करते हैं, और कुंभ के ही एक फॉर्म को हम शिव तत्व भी बोलते हैं। कैवल्य कुंभक ही शिव है। तो इस देश में हमने इस आयाम के तरफ में देखा तो काफी था, मगर वो सारा हम खो चुके हैं। इसको दोबारा रिवाइव करने का समय आ गया, क्योंकि इस समय पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को अपने शरीर को ठीक करने की जरूरत पैदा हो गई है। कोई भी ठीक नहीं है। आप सोचेंगे भारत में ही नहीं, आप तो फिर भी थोड़ा ठीक है, विदेशों में तो और भी हालत खराब है। तो ऐसे कैसे जिएंगे? कुछ भी इतना डेवलपमेंट कर लिया, आपकी लाइफ ही खराब करके। तो कभी तो आंखें खोलना ही पड़ेगा हमको। आप थेरेपी कर लीजिए, आप अपने रिकवर कर लीजिए अपने शरीर को शक्ति दे दीजिए। सर्जरी कराएं, आपकी इच्छा, जरूरी हो बहुत तो करवा लें, अगर जरूरी नहीं है तो थोड़ा समय दें, हो सकता है आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े। Okay. Ajay ji writes, I want to know about the solution of foot drop due to L4, L5. Is it curable? My brother age is 33 years, weight around 100 kgs. आई हैव आंसर्ड दिस, इसको मैंने आंसर किया है। L4, L5 में अगर एक नस दब रही है, तो वो नस आपके जो पांव पे कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल नहीं होने देगी ना। दैट इज द कंडीशन ऑफ फुट ड्रॉप।
एक तो ये, दूसरा लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो नस डीजेनरेट कर जाती है। तो अगर आप ऑपरेशन भी करवा लेंगे तो भी फुट ड्रॉप वापस ठीक नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता, अगर वो बहुत नई कंडीशन है तो हो सकता है ठीक हो जाए, बॉडी रिकवर कर जाएगा। थोड़ा लंबा कंडीशन है तो नहीं कर पाएगा। L4 L5 का ऑपरेशन करवा भी लेंगे, क्या गारंटी है कि L3 L6 में नहीं होने वाला ये प्रॉब्लम? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ स्पाइन जिसे मैं अभी बता रहा था, मैंने पूरा एग्जांपल देके बताया, उसको तो आप कुछ कर नहीं रहे रिकवर करने के लिए। दूसरी बात है, इसका और भी कारण हो सकता है, अगर मेटाबॉलिक हीट कम है शरीर के अंदर तो रीजनरेशन फैक्टर ठीक नहीं होगा। जैसे वेट ज्यादा है तो मेटाबॉलिक हीट बढ़ाएंगे तो वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, वेट शरीर पे कम होगा तो वैसे ही प्रॉब्लम कम लगेगी, मगर उसके देखिए ये मैनेजमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है उस नस को रीजनरेट करना है, स्पाइन के स्ट्रेंथ को वापस लेके आना। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको तो वापस लाना ही पड़ेगा, लाना ही चाहिए। बाकी मैनेजमेंट कुछ भी करो, पर वो ट्रीटमेंट तो कर लो। तो मेटाबॉलिक हीट बढ़ाएंगे अगर आप स्पाइन, जैसे मैंने व्यान शक्ति बताया था, मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको, इनहेलेशन फुल, होल्ड मैक्सिमम, उसके बाद भी अगर आप इजी एक्सहेलेशन कर पाए तो आपकी स्पाइन का स्ट्रेंथ ठीक है, वरना ठीक नहीं है। इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो ये प्रोग्राम जो है, इसमें हम आपका डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स वीक हो गए और आपकी क्षमता और वो वीकनेस के हिसाब से उसको फिर कस्टमाइज कर देते हैं, ताकि आप रिकवर जल्दी कर पाए आपका शरीर, और आप प्रॉब्लम से जल्दी निकल पाए। उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि ये ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लेजिटिमेट और आपके शरीर का ही तरीका है। तो कुछ समय तो देना पड़ेगा आपको, और ये चीज अभी ठीक हो जाए। 33 तो कोई भी एज नहीं है, अभी तो ठीक से जवान नहीं हुए। कुंभक करेंगे, जवान ही नहीं होंगे, लाइफ को खूब जी पाएंगे। ठीक है ना? तो ये थोड़ा इस तरफ में आपकी आंखें खोलनी पड़ेंगी कि दवाई से तो ये ठीक नहीं होने वाला, सर्जरी से तो ठीक नहीं होने वाला। तो जो शरीर जिस तरीके से ये ठीक करता है उसी पे काम करें ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्वामी जी। हाँ लास्ट क्वेश्चन। जागृति शाह पूछ रही हैं, मेरे हस्बैंड को 90% ब्लॉकेज है, क्या ये कुंभक से ब्लॉकेज रिड्यूस हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, 90% ब्लॉक, 95% ब्लॉक, और डॉक्टर के पास जाएंगे कहीं एंजियोप्लास्टी कर दो, नहीं तो हार्ट अटैक आने का चांस है। ब्लॉकेजेस से तो कभी हार्ट अटैक आता ही नहीं। वही लोगों को बताया जाता है 95% है जी, एकदम से एंजियोप्लास्टी कर लो। तो 95% क्या एक हफ्ते पहले नहीं था, एक महीना पहले नहीं था? तब क्यों नहीं आया? ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक या फिर कोलैप्स नहीं होता। पहली बात तो ये समझिए, जितना ज्यादा ब्लॉक है उतना प्रॉब्लम नहीं है। जितना कम ब्लॉक खतरनाक हो सकता है। 35-40% का ब्लॉक खतरनाक हो सकता है। 90-95% का ब्लॉक तो खतरनाक ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए एक नाली भरने लग गई, ध्यान से सुनिए, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको ये बातें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि ये क्यों नहीं सोचते आप। एक नाली भरने लग गई, अगर वो थोड़ी ज्यादा भरने लग गई तो वो अपना रास्ता दूसरा निकालेगी कि नहीं निकालेगी? तो कम ब्लॉकेजेस में तो शायद पानी रुक जाए, ज्यादा ब्लॉक में तो रुकेगा ही नहीं पानी, वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। तो आपके हार्ट में कोलैटरल्स होते हैं, इसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज, यानी वो बैठे हुए हैं वहां पे कि ये ब्लॉक हो तो वो खुल जाए, थोड़ी सी तकलीफ होगी बस और वो खुल जाए, और आपका हार्ट और मजबूत हो जाएगा। जितने कोलैटरल उतना मजबूत हार्ट, उतनी लाइफ लंबी आपकी। जहां एंजियोप्लास्टी कराया 5 साल कम। मुझे एक बात बताइए, इतना डरा डरा के धंधा कर रहे हैं सब, आप डर रहे हो, तो डरने में ही अपने आप को खत्म कर देंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो पहली बात, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता। दूसरी बात, ब्लॉकेजेस आर गुड, अच्छी चीजें हैं वो। क्लॉट से हार्ट अटैक होता, ब्लड क्लॉट आ जाएगा वहां पे तो हार्ट अटैक। क्लॉट क्यों करेगा शरीर?
क्योंकि वो बचाना चाहता है। जब भी चोट लगती है ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो गड़बड़ है ना, तो क्लॉट क्यों करेगा? बचाएगा, ब्लड लॉस से बचाएगा। अंदर क्लॉट क्यों करेगा? क्योंकि आप कुछ खतरा कर रहे हो अंदर। भाई खतरा कर रहे हो, क्या खतरा कर रहे हो? केमिकल डाल रहे हो अंदर, वो खतरा है जिससे क्लॉट बनता है। खतरा है, आप समझिए ना, ये क्लॉटिंग इस समय क्यों हो रही है? पूरी मानव प्रजाति को करोड़ों साल तक कोई क्लॉट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई स्ट्रोक नहीं हुआ। ये आज ही क्यों हो रहा है? और एक बात बताइए कि आप अपने शरीर पे भरोसा ही नहीं करते। भाई आपको ये भी नहीं मालूम कि हार्ट बीट कैसे हो रहा है, आपको ये नहीं मालूम डाइजेशन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन कैसे हो रहा है, मगर आपका शरीर परफेक्ट तरीके से करता है। जो शरीर इतने परफेक्ट तरीके से और करोड़ों साल तक इसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं है। वो 5 साल के एक्सपेरिमेंट किसी फिरंगी ने कर दिया कहीं पे जाके, उसके लिए करोड़ों साल का एक्सपेरिमेंट जो है उसको आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। भारतीय संस्कृति जो है 60,000 साल पुरानी है। 5 साल के एक्सपेरिमेंट के लिए 50,000 साल का एक्सपेरिमेंट आप छोड़ देते हो। उसके बाद आप कहेंगे कि जी हमारी हालत खराब हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? कर्म दोष तो लगेगा ना, कर्मा विल बाइट बैक। आप सोचते हैं अरे हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, कर्म नहीं छोड़ने वाला ना, गलत किया है तो गलत ही मिलेगा। ये तो समझना पड़ेगा आपको। तो ब्लॉकेजेस, अगर एक और बात बताता हूं, 30 साल का जो इंसान है, अगर उसके हार्ट में ब्लॉकेजेस और कोलेटरल्स नहीं मिले तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। किसकी बात मान रहे हैं आप? थोड़ा जोर लगाइए, ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉकेज क्यों होता है? आपका पानी का प्रेशर कम है, आप पेड़ पौधे में पानी डाल रहे हैं, कोई पौधा दूर है जहां तक पहुंच नहीं सकते, क्या करते हैं? आप ऐसे दबाते हैं ना नली को, पाइप को दबाते हैं ना, कम करते हैं ल्यूमेन उसका। हार्ट भी तो वही काम कर रहा है ना, कम कर रहा है ल्यूमेन ताकि प्रेशर ठीक रहे, ताकि आप जिंदा रहें। बताइए आप उल्टा काम करोगे तो आप अंदर का प्रेशर तो ठीक रखे ना, ये ब्लॉकेज बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हार्ट के ब्लॉक कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन आपकी दवाई रिस्क है। कैच कहां पे है? आपकी दवाई रिस्क है। भाई क्लॉट फॉर्म कर देगा वो, जिस दिन आपके शरीर को लगा कि भैया ये तो बहुत ज्यादा कर दिया, उस दिन द बॉडी विल स्टॉप ना। आपके ऊपर टॉर्चर कितना झेलोगे आप? एक बार तो गिव अप कर दोगे ना, आपका शरीर भी वही कर देगा। आपको ये मालूम नहीं टाइम कब आएगा इसका। लोगों के बहुत जल्दी टाइम आ रहे हैं। 30-30, 40-40 साल के जवान लोग, 45 साल के जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा विदाउट एनी रीजन। बॉडी शटिंग डाउन, और ये बच्चों बच्चों में होना शुरू हो जाएगा। बॉडी विल शट डाउन कि भाई तुम ज्यादा ज्ञानी हो गए जी। तो ये साइंस के नाम पे आप कुछ भी मानने को तैयार हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, सुपरस्टिशन को भी आप साइंस का टैग दे रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। आप भारतीय हैं, हमने साइंस दिया दुनिया को, दूसरों लोगों ने चुरा चुरा के ले गए, तो उनको चुराई हुआ माल हजम थोड़ी होगा। भाई साइंस तो उन्होंने चुराया है हमसे, और चोरी किया हुआ माल ज्यादा समय हजम नहीं होता। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, जीने लायक नहीं छोड़ा इस पृथ्वी को। तो केवल साइंस का टैग लगाने से साइंस नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी। ठीक है ना? तो आप लोगों का वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों का आगे का जीवन बहुत खुशहाल हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वामी राज विभू की गद्दी से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार स्वामी जी। अगर आपका जो सवाल है वो अगर आंसर नहीं कर पाए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लिखें, और वहां पर पूरा एक एक सवाल का हम जवाब आपको जरूर देंगे।
और इसी के साथ हम वेबिनार क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।